Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Darbhanga, the cultural capital of Bihar, famous for its trade in fish, mangoes and makhanas, recently got itself an operational airport. Opened in November 2020, the year also of the COVID-19 pandemic, a year in which for months, not just airplanes but all modes of public transport were completely shut. Even today, only one commercial airline flies into this small hub in eastern India, otherwise controlled by the Air Force. The irony is not lost on anyone when juxtaposed with the other images that defined 2020, the millions of migrant workers who had to walk home. Bihar, along with Uttar Pradesh, has the largest number of such workers in India. We are in Darbhanga on the ground to meet the child who has almost become its most famous resident this year. We drive past wide open wheat fields and banana trees and also roadside village schools where children are finally back in the classroom. We are driving to the village of Silholi, and along the way, this is a pretty common sight. Young girls on their bicycles, literally dreams on wheels. Nitish Kumar's mass cycle distribution program to keep girls enrolled in schools is considered one of his best schemes. And in rural Bihar, we see small cycle shops like this one in literally every hamlet. As she cycles about in ghee abandon, 17-year-old Jyoti Paswan is all smiles. This cycle is the reason that she and her family are alive today and have a future to look forward to. ज्योति, अब ये बताओ, अब तो 1 साल हो गया है, पूरा देश क्या पूरी दुनिया आपको जानती है, लेकिन इस 1 साल के बाद आपकी जिंदगी आज कैसे चल रही है? आज तो बहुत अच्छे चल रहा है क्योंकि मेरे पास सब कुछ का दिक्कत था, खाना पीना, रहने सहने सब कुछ का दिक्कत था, और हम जैसे आए हैं पापा को लेके, वैसे तो मेरा बहुत अच्छा ज़िंदगी बदल गया। मतलब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई? हाँ, बेहतर हो गई। और मैं देख भी रही हूँ कि घर भी पक्का बन गया, पहले नहीं था। But the horror of last year never lurks too far from Jyoti's memory. The nights she and her father spent at petrol stations, on the road, under an open sky and amid strangers. The nights she thought she would never make it. The 1200 kilometers she cycled with her father Mohan sitting behind her all the way from Delhi to Darbhanga. ज्योति, आप ये बताइए कि उस समय जब आपके फादर आपके पीछे थे साइकिल पे और आपको हजारों किलोमीटर तक साइकिल करना पड़ा था, तो आपके दिल में क्या गुजर रही थी? दिल में बहुत अच्छी गुजर रही थी कि कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, और पैर हाथ भी दर्द हो रहा था इस वजह से। अच्छा, मुझे उन 8 दिन के बारे में बताओ घर जाने में जो लगे। मतलब उस समय खाना आप कौन देता था आपको? खाना कहाँ से मिलता था? कभी लगता था कि भूख से ही ना मर जाए? लग रहा था, तो क्या करते। In a village where most of the people still live in houses made from mud and barely earn enough to have 2 meals a day, the Paswan house stands out for being the only pakka house in the entire area. Jyoti's marathon journey got the world to stand up and take notice, but only she knows how traumatic those days on the road were. A recent operation on her father's leg, he was injured in an accident while driving his e-rickshaw, meant only she could ride the cycle while her father sat pillion. मुझे याद है जब मैंने 1 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था, तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं भी घूम रही थी देश में, पूरे देश में घूम रही थी। उस समय आपने कहा था कि कई बार आपको लगता था कि शायद ये मैं ना कर पाऊँ, और रोज रात को आप रोती थी जी। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मतलब वो सोचते थे हम लड़की है, कुछ हो जाए, कोई कुछ कर ले, यही सोच के डर होता था, तो क्या करते। फिर वहाँ पे सब कुछ का दिक्कत था, जहाँ पे भी रहते थे वहाँ पे भी सब कुछ का दिक्कत, इसके कारण हम लोग वहाँ से निकल गए। पापा भी डर रहे थे कि मैं एक लड़की होकर चला रही है, कुछ कोई कर दे, हम तो नहीं रहा, चल नहीं पाते हैं। Like millions of other Indians in 2020, the last census says 450 million Indians are internal migrants. The Paswan house too has known what acute poverty and hardship feels like.
Ask Jyoti's mother Phulo and she will tell you how difficult it has been to look after their 5 children. तो अभी तो जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई है, घर भी पक्का बन गया है, पहले कितनी मुश्किल होती थी? बहुत मुश्किल है। बताइए। वही गरीबी जी रहे थे, कटनी खोटनी गेहूँ धान रोपने जा रहे थे वन में। जिस दिन ज्योति यहाँ पर आए वो मट्टी के काम जो होता है वो काम हम सब कर रहे थे यहाँ पर ही। Jyoti's father Mohan spent close to 15 years as a migrant worker in Delhi and its adjoining areas, trying his hands at different things to make enough money to send home. Now is the first time in decades that he does not feel the economic pressure to return to the city lights. अच्छा ये बताइए, आपने कहा था कि आपको चोट लगी, जो आपको चोट लगी थी वो चोट क्या लगी थी बताओ? मैम ई रिक्शा चला रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया था। अरे ये कब की बात है? 26 जनवरी की। कुछ साल हो गए? हाँ 1 साल तो हो ही गया। उसी समय मतलब कि पिछले साल 2020 की बात कर रहे हैं? जी मैम। और तभी ज्योति को आपको साइकिल पे लाना पड़ा? जी मैम। अच्छा समझ। ये लोग सब यहाँ पे थे, जब एक्सीडेंट हुआ तो ये लोग गए हम लोग को देखने वहाँ। तो मम्मी आज हमारा जमाई चला आया, इसको बोला जो रहने तो खाना पीना बनाएगी खिलाएगी। थोड़ा सा रहेगा मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपना 1 महीना कमा के छोड़ दूँगा। उसी बीच में लॉकडाउन लग गया मैम। लॉकडाउन 1 2 3 मैम यहाँ से जो दवा के लिए पैसे सब भेजे थे तो हम लोग दवा भी कम हो गया, खाने पीने में लगा रहे थे। तो ये तो काफी बड़ी चोट है। जी मैम, सफदरजंग में ऑपरेशन हुआ था। अच्छा ऑपरेशन हुआ था? जी मैम। एक टाइम था आप दिल्ली में ई रिक्शा चलाते थे? जी मैम। और भी आपने काम किए, क्या क्या काम किए? मैम इससे पहले मैं नोएडा में था, मारुति कंपनी में काम कर रहे थे। उसके बाद मैं इटालियन रेस्टोरेंट में भी काम किया। अच्छा क्या किए इटालियन रेस्टोरेंट में? शेफ थे हम। अच्छा शेफ थे, क्या क्या बनाते थे? पास्ता वगैरह बनाते थे, पिज्जा वगैरह बनाते थे। किसने सिखाया आपको? एक शेफ था मेरा, शंकर शेफ। अच्छा उसने आपको सिखाया सब कुछ? वेरी गुड। आप हमारे को भी खा के जरूर खिलाइएगा। Economics tells one part of the story. Social prejudice and caste discrimination is the untold other dimension to this humanitarian crisis. A new survey of more than 8,000 migrant workers who went back home during the lockdown reveals that more than 80% are from marginalized groups, SC, ST or OBCs. Mohan Paswan sees shades of his own life in those numbers. Things have changed, yes, but they are far from having changed completely. अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग के साथ आप मुझे बता रहे थे क्योंकि आप दलित समाज की हैं, तो पहले छुआछूत होता था? जी मैं पहले तो था, अब फिलहाल बहुत कम हो चुका है। तो क्या बोलते थे लोग, यहाँ ज्यादा होता था कि शहर में ज्यादा होता? शहर में तो इस चीज को नहीं देखा मैम, लेकिन गांव शहर में होता था जो पहले छुआछूत होता था। क्या करते थे लोग? जो ऐसे है जो भाई हट के रहो, छुआ जाएगा, पानी छुआ जाएगा, कल छुआ जाएगा, पानी हमको लेने दो तब तुम पानी लेना। बहुत सारी बात होते थे जहाँ पे हम लोग बड़े लोग बैठते थे वहाँ हम लोग को नहीं बैठने देते थे। जब हम लोग बहुत सारी बात होते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा काफी बदलाव हुआ है मैम। लेकिन ये ज्योति के बड़ा नाम बनने के बाद कम हुआ और ज्योति के बड़ा नाम बनने के बाद गाँव वालों के बर्ताव में क्या अंतर आया? ज्योति का नाम हो गया तो अब बहुत कम हो गया है ये सब चीज छुआछूत। अदर गाँव घर में तो थोड़ा बहुत है, बाकी लोग जो है बहुत सारे लोग खुश भी हैं। Movie directors are now lining up at Jyoti's door to make biopics on her life. But the slotting of her as a super sportswoman instead of a victim, extraordinarily brave but a victim nevertheless, is to undervalue what she has battled. It is easy, all too easy, to romanticize the story of Jyoti Paswan as was done at the height of the pandemic and the lockdown. It is easy to say that, look, even Ivanka Trump noticed what she did. But you know what? It's also tone deaf. Because while Jyoti showed enormous courage and deserves every accolade, every opportunity that comes her way, the fact that a teenage girl, a school-going child was placed in this position at all is what we also need to think about. Because when it was unfolding, it was a horrible tragedy, just one that thankfully ended well. To come here to their village in Darbhanga is also to understand that these are issues that unfold at the layers and intersections of caste, class and gender. Jyoti's father Mohan, for example, tells us that because he's a Dalit, for many years he has faced caste discrimination, especially in the past. And Jyoti tells us that today she's facing a very different kind of discrimination, resentment at the attention she's getting.
The cycle that Jyoti brought her father on, the one that travelled 1200 kilometres, is now lying under a mountain of dust right behind the kitchen. As Jyoti takes it out and dusts and polishes it, she shares with us how the world may be full of adulation for her, but her own village has been hostile. ज्योति, ये बताओ कि आपके साथ पहले छुआछूत होती थी और अब क्या कैसे बदला है लोगों का बर्ताव, गांव वालों का? पहले तो छुआछूत नहीं हो रहा था, अब अभी भी नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा मोड़ा, मतलब मेरे कास्ट का थी सब ना, थोड़ा मोड़ा जल रहा है बहुत। अच्छा, लोग क्या मतलब कुछ गलत चीज़ें कहते हैं? हाँ, बहुत गलत चीज़ बोलता है। जैसे हम घर बनाया है तो बोलते रहते हैं, वाह देखो घर बना लिया है, फन्ना चीना, बहुत बात बोलते रहते, लेकिन हम लोग कुछ बोलते नहीं है। मतलब जात को ना लेके बाकी चीज़ें बोलते हैं? जात तो मेरा ही है। हाँ, मेरे ही पर छुआछूत नहीं है। हाँ, बाकी उल्ट सुलट बोलते हैं। जैसे बताओ। जैसे मतलब बोलते रहता है, आया झूठ फूस को बोलता है, हम बोले तुम तो देखने के लिए नहीं गए कि हम ट्रक से आए कि क्या चीज़ से आए हैं। हाँ, हम तो बोले हम तो आए साइकिल से, तो साइकिल का नाम ही ना बोलेंगे। मतलब आप कह रहे हैं लोग जलते हैं? बहुत जलते हैं। थोड़ा सा वही उल्टी पुल्टी बातें वगैरह वो लोग बोलते रहते हैं, जो ऐसे है वैसे है, फ्री का पैसा मिल रहा है, घर बना रहा है, चिढ़ते हैं। हाँ, मतलब चिढ़ते हैं। गाड़ी ले लिया, कभी लाइफ में तो देखा नहीं होगा, आज देख रहा है, ऐसे है वैसे है, बहुत सारे बात है। हम लोग तो मैम किसी को बोलते नहीं हैं, जो लोग भाई गाली भी दोगे तो सहन शक्ति के हम लोग रखते हैं, जो नहीं। Life though has toughened Jyoti up, and now she believes that every obstacle is surmountable. She takes us to her village school. Here she has just cleared the class 10 exams. Ask her about her dreams and she says she just wants to study and study more and do really well as a student. Later in the day she asks me if I know how to ride a cycle. I haven't been on one in a few years, but now seems as good a time as any to take a moment in an otherwise bleak year to enjoy just a few moments of freedom, and also a moment in admiration of a young woman who would not take no for an answer. तो आप सब लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? अच्छा कहना चाहते, अच्छा काम करे, जैसे ज्योति नाम किया उसी तरह सभी लड़की पढ़े लिखे अपना नाम करे। As the sun sets in Siloli, father and daughter look out at the village and the fields around them, but also they look out ahead at the dream of a better life. ये एक नियम और होना चाहिए इंडिया में, जो कि सबसे पहले मंत्री हो कोई भी हो, उसका बेटा और मंत्री जो भी विधायक का चुनाव लड़े, चाहे मुख्यमंत्री का, उसे लद्दाख में ले जाया जाए और 1 साल का वो कोर्स कंपल्सरी किया जाए, उसे 1 साल वहीं रखा जाए, बाद उसे टिकट मिले तब वो मुख्यमंत्री पद बनने का दावेदार हो। चार बार मारा भी मेरे को, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगी, यहीं रहूँगी और क्या करूँ। मत रो प्लीज, मत रो। नहीं रहूँगी। नहीं, वापस तेरे सीमेंट कभी नहीं आएंगे, क्या कि हमारे साथ कंपनी बहुत धोखा किया हुआ है। वापस कभी नहीं आओगे? नहीं आएंगे। हम लोग के लिए कभी पूछताछ करने अभी कभी नहीं आया कंपनी की तरफ से कि तुम लोग खा रहे हो कि पी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम लोग तुम लोग का पैसा है कि नहीं है, कि तबीयत खराब है कि क्या है, आज तक हम लोग का मेडिकल चेक भी नहीं हुआ था, कैसे हम लोग कहें कि व्यवस्था है। मुझे बताओ, कोरोना वायरस का आपने नाम सुना है, उसका क्या मतलब समझते हो आप? मुझे ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। आप कोरोना वायरस का मतलब समझते हो कि ठीक से खाना नहीं मिल रहा? मतलब खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। जो प्लेन से आया और सफ़र कौन कर रहा है? साइकिल वाला। और सच्ची बात है ना, क्या बोल सकते हैं। ये आपने ठीक बोला कि वायरस आया प्लेन से और सड़क पे है साइकिल वाला। हाँ,
क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि झोपड़पट्टी से आता है बीमारी, झोपड़पट्टी से नहीं है ये बीमारी आपके यहाँ से आई है और सफ़र हम कर रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.